So, good morning, respected teachers. This is our day, right? Teachers' Day is something to remember. It's something really memorable for us. Because on this day, I guess we are all recognized for our work, right? This is one day, perhaps. Of course, without a school, we are no one. बिना स्कूल के हम लोग कोई नहीं है. Because of the tag of the school, we have an identity. Yes, but on Teachers' Day, I believe that this is one day where we are above everything else. So this is a proud moment. This ought to be a proud moment for all of us, the teachers. And I welcome all the teachers here on this on Teachers' Day, and I also welcome our Honorable Chairman Sir, Advisor Sir, Director Sir, and all the other staff members who are here to celebrate Teachers' Day with us. You know, this is a spirit of sharing. This is the spirit of sharing, because it is Teachers' Day, but we are all here. The staff members are all here. You know, this is the spirit of sharing, of standing together, of showing some solidarity on a particular occasion. So this is the solidarity. And this is one school I've found where there is a lot of solidarity among people, among all of us, and we stand shoulder to shoulder, sharing our feelings, sharing our thoughts, and perhaps sharing our problems with one another. So, this Teachers' Day is something special. It's special है because we all know, because of the COVID-19 situation, we are a little kind of bogged down this time. However, the spirit is still high. The situation may be a little difficult, but the spirit is still there. And this is the time to celebrate our mission. I believe that this is the time to celebrate our mission, and our mission being to keep educating the students, to show them the right way, to lead them towards the light of knowledge, even in the most difficult times. And I am thankful personally, and I'm sure, everybody, the school, the management is also thankful to all of you for continuing this particular mission, even in such difficult times. So I guess this is a great moment for all of us. Maybe we are in a difficult situation, but this difficult situation has actually made us stronger, isn't it? It has made us stronger. And it has made us more determined to do our duty as teachers, as educators. Right? So, how can we ever forget you people? So, thanks to Director Sir, he said that we will have, despite the fact that students are not here, otherwise it would have been more, interesting, it would have been more fascinating. However, we still have something very special for you. You see, it is not the thing that really matters which is given to you, which I believe. It is not what is given to you, but the kind of respect, the kind of acknowledgement that goes with the particular thing that is given to you as something memorable. And what can be more memorable than a certificate of recognition? Recognition of what? Recognition of your determined effort, your will to continue even in these difficult times. So, such determination, such will, such contribution should not go unthanked for. And that is the reason that Director Sir said that we must give all the teachers something that they would remember.
And it is something to remember, even after 20, 30 years, if you look at that particular certificate, you look at that particular, memento, it's a kind of a memento. So if you look at that, you will remember these times when we stood together to fight COVID-19 and actually defeat it in the real sense of the term. Why defeat? Because we have not stopped educating the children. Even in the most difficult times, we've carried on. We've soldiered on. And that is important. It is in recognition of this particular fact that we will give you this little honor from our side. So I take the privilege of now calling upon Chairman Sir and Advisor Sir to please come forward and please welcome them. And they will now come and we will give away the certificates one by one. So I take the privilege. Sir, aap बैठिए. Sir, aap आए. So I now take the privilege of calling out the names one after another, and you will please come over and take this little token of remembrance, which will remain with you, I'm sure, forever. All right? So let us now begin. So the first name, a very dedicated teacher who's been with us for quite some time, and he has shown his determined effort, and he has also shown the way to many other teachers, right? And he has always been very determined and, of course, very, very dedicated. And it's Sunil Sir, Sunil Kumar. Mr. Sunil Kumar. Another name who has been with us for a considerable amount of time and has also been known for his strict nature and dedication, Mr. Abhay Kumar Singh. Abhay sir. Then of course, the person who has a very smiling disposition, and he is of course somebody who we look forward to, not only just in case in the sphere of academics, but also whenever there is some co-curricular activities and so on, and he's always there to help us out. Mr. Mukhi Kumar. Mukhi sir. मेरे ख्याल से तालियां और थोड़ा जोर से बजनी चाहिए. Please show some enthusiasm. This is for us. That's how I began my speech. All right. Of course, this person is with us in everything, right? Whenever we need this person, at least when I need this person, I always depend on him. And it is Mr. Amkesh Kumar. Amkesh sir. Chemistry is incomplete without him, and he is Mr. Upendra Kumar. Upendra sir. He is new to us comparatively, in comparison, but he has shown his dedicated approach to the teaching learning process. And he is Mr. Gautam Raj. Gautam sir. Now we are all
indebted to him because he teaches biology, and biology again is incomplete without him. And it is Raju sir, Raju Kumar. And we have a very sophisticated teacher, Mrs. Priya Kashyap. Priya ma'am. She has really done a great job. The man who is very suave, very contained in what he says, right? बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, and he really has an impressive style of speaking. And he is Mr. Gyanendra Kishore Pandey. Gyanendra sir. Very young, yet very energetic. And the name is Miss Priyanka. Priyanka miss. Again, an old timer, and he has been teaching English in the junior sections and has done a great job. It's Mr. Vikas Kumar. Vikas sir. And so now I would request our honorable advisor sir. I request Chairman sir to step down, and advisor sir. Yes, this man deserves a special mention. And he too is somebody very dependable. You see, dependability is something essential in every profession. There are many who are good people, who are good staff, members of the staff, but very few who can be depended upon. And the name, another name for dependability is Mr. Tarun Ranjan. Tarun sir. A name who has defied age, right? And he has continued teaching despite all the problems. And he is Mr. Prabhunath Prasad. Prabhunath sir. Another old timer, and he has been with us for a very long time. In fact, he has been for a time much longer than me, right? And he is Mr. Alok Srivastav. Alok sir. Speaking of old timers, here is somebody who has been with us for the longest time, perhaps. And the question is, what isn't she? She is everything. She's a good teacher. She is dependable. She comes whenever it's required. And she has done a great job during my tenure as the principal. And she is Mrs. Rita Verma. Rita ma'am. A big applause for her, please. She's again somebody who has been with us for a very long time. And whenever we talk of SST, other than Abhay sir, this is the name
which features in our mind, and that is Mrs. Arpita Srivastav. Arpita ma'am. Again, very young and energetic as well. I remember when the pre-primary classes were on, she used to stand for 7 long periods and continue teaching. Miss Khushbu Kumari, Khushbu Miss. And of course, last but not the least, here is somebody new, but he has already made a mark for himself as somebody who is very dependable. And it is Mr. Manish Kumar. Manish sir. Thank you, sir. Step down. Now, I would request our Honorable Chairman, sir, to say a few inspiring words which would inspire us in the future to carry out our duties even better. Chairman, sir. Our teachers, principals, and other staff. आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है इस टीचर समुदाय के लिए, परंतु इसकी शुरुआत होने का एक विशेष कारण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्मदिन है। एक टीचर होने के नाते वे कभी पॉलिटिशियन नहीं थे। भारत ने उनको सर्वोच्च स्थान दिया, राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति देश का सबसे उच्च सम्मानित व्यक्ति होता है। इस पद पर जाने के लिए उन्होंने टीचिंग के अलावा उनका और कोई विशेष पॉलिटिकल योगदान नहीं होने के बावजूद भी भारत ने उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया। आप में से कोई भी वह स्थान प्राप्त कर सकता है। निर्भर करता है आप कितना अपना बुद्धि का उपयोग करते हुए लगातार छोटे बच्चों से लेकर के और जहां तक आप संभव है बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन शिक्षा दे सकें। कितनी बड़ी बात है और यह कोई नई बात नहीं है। आज के युग में भी संसार में यदि कोई सबसे पूज्य व्यक्ति होता है वह शिक्षक ही होता है। एक कोई देश है अभी जहां पर किसी जज के सामने किसी कोर्ट में यदि कोई शिक्षक पहुंच गया, जज साहब अपनी कुर्सी पर नहीं बने रहते हैं,
खड़ा होते हैं और सबको कहते हैं कि देखिए आज हमारे ऑफिस में एक विशेष व्यक्ति, एक शिक्षक आ गया है, आप सभी खड़ा हो। पूरे संसार पर राज्य करने वाला ब्रिटेन 2-3 विद्यालयों को लेकर के, मुख्य रूप से एक ही विद्यालय है वहां, पूरे संसार में राज्य किया, सिर्फ अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर। किसी भी हालत में आप अपने कर्मों को पैसा से नहीं तौलिए, या किसी भी हालत में नहीं तौला जा सकता है पैसा से। ऐसा उच्च कर्म दुनिया में कोई नहीं। माता पिता सिर्फ एंड सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, चलना सिखा देते हैं और अपनी लैंग्वेज में बोलना तक। उसके बाद सब कुछ यदि कोई देता है तो वह शिक्षक ही देता है, वही रास्ता बतलाता है। एक साइंटिस्ट भी आपके यहाँ, उनको प्रतिष्ठा दी गई, सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी गई, अब्दुल कलाम। उनका क्या पॉलिटिकल देन था ये अब रिसेंट आप जानते हैं सब। राधा कृष्णन तो काफी पहले 60 वर्ष हो गया, ये तो अभी 4-5 साल की पहले की बात है। अच्छे साइंटिस्ट थे, मन से एक शिक्षक भी थे, बच्चों में प्रेरणा की भावना उनके दिल में कुट कुट करके भरी हुई थी, कैसे अच्छा बन जाए। उन्हें भी भारत में सर्वोच्च स्थान दिया। ये 2 ज्वलंत उदाहरण हैं। एक शिक्षक के प्रतिष्ठा में समाज क्या नहीं दे सकता है, सब कुछ दिया भारत ने उन्हें। आप अपने को कमजोर नहीं समझिए। सीखने का कोई दिन भी नहीं होता है, ना उम्र होती है। कहीं से सीख करके कुछ भी किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। रिटायरमेंट के बाद कोई नोबेल laureate हुआ, दूसरा लैंग्वेज सीख करके उसमें किताबें लिखी हैं। आप अपने को एक लिमिटेड एरिया में नहीं रखिए, प्रयास कीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कीजिएगा, ये मेरी आपके लिए कामना है। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for these wonderful words. And now, we have always counted on him for his blessings. So, a man of few words, I would like to invite our honorable advisor, sir. Advisor, sir. मित्रों, अपने माननीय चेयरमैन का साधुवाद मैं सबसे पहले आज के दिन करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये बीमारी जो आई कोरोना, उसमें जिस साहस के साथ, जिस उत्साह के साथ और बिल्कुल आशान्वित होकर हमेशा इन्होंने यह सोचा कि नहीं, यह रहने वाला नहीं है, यह जाएगा और हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है। जब जब इनसे बातें हुई, इन्होंने हर समय उत्साह वर्धन ही किया, कभी कोई निराशाजनक बात नहीं कही। निश्चित रूप से यह प्रेरणास्पद है। आप शिक्षक भी रहे हैं, प्राचार्य भी रहे हैं, इसलिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब इस विकट घड़ी में जिस अदम्य उत्साह के साथ खड़े हैं, ऑनलाइन टीचिंग का जितना सुदृढ़ प्रबंध इन्होंने किया है, वह इस जिले में क्या, हमको तो लगता है कि बहुत दूर दूर तक काबिल तारीफ है। और हमारे प्राचार्य महोदय
निरंतर खड़ा रहते हैं, हर क्षण 24 घंटे की सेवा है इनकी। और कितनी मुस्तैदी से इस विद्यालय की गरिमा को आगे बढ़ाने का जो इन्होंने व्रत लिया है उसे करते जा रहे हैं निरंतर। और हम सभी, हमारा विद्यालय सफलता की ओर है, यह सब अपने आप में एक उदाहरण है, नमूना। आप सभी शिक्षक आज के दिन सम्मान के पात्र हैं, इसलिए कि आज का दिन शिक्षकों को ही समर्पित है। महान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर त्योहार के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मनाया जा रहा है। आप सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कभी निराश न हो। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों राही मंजिल दूर नहीं है। आपका विद्यालय आगे जा रहा है, जाएगा, जाकर ही रहेगा। आपने जो व्रत लिया है वह पूरा होकर रहेगा। हमारे छात्र फिर आएंगे, फिर से यह बागवां हरा भरा होगा, छात्रों से भरपूर होगा और हम सभी निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करके ही रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। Thank you, sir. And now, I mean, the one man, let me tell you, I mean, very frankly, because I interact with him every day. That's my job. The one man who has never missed an opportunity to felicitate and honor the teachers. मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी ये बात कि आज इस तरह का कुछ किया जाए. But he's somebody who said it doesn't matter if the students are not here, we'll do it. Right? And he has been doing it right since the beginning. I mean, he has never let us feel, except for the online classes, I mean, he has never let us feel that the school has actually closed for the time being. It is not running. The physical classes are not running. He has never let us feel that. So, I invite him here most humbly. And please, sir, हम लोगों को कुछ humorous कुछ बताइए. He is very good at humor. Right? So, humorous कुछ बताइए. We have not laughed for a long time. So, please, sir, Director sir. Tell us something perhaps of your experience जब आप student रहे होंगे. Something funny, something humorous. Thank you very much for this funny introduction. Good morning everyone, and we are here around 20-25 people. Let me put it off because हम थोड़ा distance में कर सकते हैं. So we are not only 25 people. I am welcoming all our 800 students and their parents. They are watching us online. So this live webcast is happening on the Facebook in the worldwide. Everyone is watching. So we are celebrating here along with students and parents. Earlier we were celebrating जब आते थे बच्चे हमारे पास तो बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते थे. हम पेरेंट्स के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके रिलेटिव भी होंगे, सब लोग वॉच कर रहे हैं. कल मैं बैठ कर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. सोचा कि आई वाज जस्ट थिंकिंग फॉर 2-3 days एंड जब आप बिस्तर पे जाके रात में पूरा दिन का एक मैं करता हूँ तो मुझे लग रहा कि मैं जब बचपन से सोचना शुरू किया कौन कौन से टीचर थे. जैसे स्कूल में है, यहाँ पे इतने टीचर हैं, कौन कौन ऐसे टीचर हैं जिन्होंने मेरे लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला है या जिनके कारण मैं मोटिवेट हुआ. उनकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, रात में मैंने एडिट किया है एंड पोस्ट किया है. राइट फ्रॉम द विलेज 1980s में बिजली वगैरह नहीं होती थी, ढिबरी होता था, लालटेन. एक्चुअली काफ़ी वो जिनके पास पैसे थे उनके पास, और लैम्प और भी पैसे वालों के पास होता था. सो एक ढिबरी जलाते थे. एक मंगनी लाल टीचर आते थे, पढ़ाते थे. वो सही में मंगनी लाल ही थे क्योंकि 50 पैसा महीना हम लोग उनको देते थे. ये याद आ रहा है, 50 पैसे की वैल्यू थी उसमें. मुझे लगता है समवेयर 78 के आसपास की बात होगी जो वहाँ से मेरा शुरू हुआ. आप लोग सब यहाँ पे एंड यू आर डूइंग सच ए फैंटास्टिक वर्क. इवन दैट सम ऑफ देम यू हैव ज्वाइंड इन ऑनलाइन. जब चल रहा था तभी ज्वाइन किया है. प्रिया ने ऑनलाइन के टाइम में ही पहला क्लास लिया, मनीष ने लिया है. आई एम गेटिंग सो मच ऑफ द फीडबैक. मेरे पास आते रहते हैं फीडबैक. और प्रिया आपके लिए काफ़ी अच्छा फीडबैक आया मुझे पेरेंट्स के साइड से कि नाउ दैट यू हैव द टीचर. काफ़ी अच्छा कहता है. मनीष सर आपके लिए बिकॉज यू आर डूइंग सो मच ऑफ एक्टिविटीज़. एक दो चीज़ मैं बोलूँगा, चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है, ऑल्दो दे आर वाचिंग, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं
मैं जो कल वीडियो बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने टीचर को आज भी क्यों याद रख रहा हूँ। कुछ तो बात अलग होगी, वो बात आप लोगों को एक जरूर पैदा करनी चाहिए अपने में कि जब बच्चे जाएं, हर साल नए बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बच्चा जब कहीं जाए सक्सेसफुल हो जाए या कहीं भी जॉब में हो, उस समय भी आपको याद करें। मैंने बच्चों को यही बोला कि देखिए आपको जब आप आगे जाएंगे, सेट कर जाएंगे, तब अपने फ्रेंड्स को ढूंढना शुरू करेंगे, वो मिल जाएंगे सब, लेकिन आपके गुरुजी आपको नहीं मिलेंगे, तब तक वो शायद इस दुनिया में हो या ना हो। मैं देखता हूँ कि मैंने अगर उनको याद इसलिए रखा है कि एक तो पढ़ाया भी, और जो चीज़ पढ़ाए प्लस इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा थी। ऐसे नहीं आए और लेक्चर दे के चले गए, इतनी इंगेजिंग रही है उनका, जिसके कारण मैं उनको याद रखता हूँ। मैं एक कल याद करता है, एक मेरी टीचर होती थी, जापान में मैं था तो साचिको खानो, बहुत क्लोज था मैं, बाकी टीचर से मैं कनेक्ट हो गया, उनको ढूंढता रहा, किसी का कुछ पता नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि वो शायद अभी हैं भी इस दुनिया में या नहीं है। कभी कभी लगता है कि मैं कभी जाऊंगा जापान और ढूंढूंगा उनको कि कहाँ पे हैं। मतलब इतना बड़ा छाप, जिसको बोलते हैं अमिट छाप, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा है हर तरह का। लाइन बाद में मैं जब गया कॉर्पोरेट में, तब वहाँ पे बोला गया, वहाँ भी मैं ट्रेनर था, तो बोला गया कि आप कभी भी जब पढ़ाते हैं स्टोरी लाइन बना के पढ़ाइए, क्योंकि स्टोरी बच्चे को याद रहती है। अभी आप में से जो साइंस के नहीं, अगर मैं पूछूंगा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत याद है, न्यूटन के याद है, नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपकी थर्स्टी क्रो की स्टोरी याद है, तो सबको याद होगा, सबको, क्योंकि स्टोरी याद रहती है, कनेक्ट होती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि स्टोरी लाइन बनाइए, कुछ ना कुछ बनाइए उसके स्टोरी लाइन। जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने इतना बड़ा 1 किलोमीटर का वायर डालना इज़ नॉट एक चाइल्ड गेम। आप सोच सकते हैं कितना एक हिम्मत चाहिए 1 किलोमीटर लंबा तार डालने के लिए, जिसमें कि वो तार काट के कोई ले भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, और एक फाइबर जो कि कॉस्टली वायर है, जिसका पेमेंट हमने किया बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर में हमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हो, और मोबाइल पे जो हम अभी ऑनलाइन क्लास, क्योंकि कब तक खुलेगा नहीं खुलेगा उसका कुछ अता पता नहीं है, जो ऑनलाइन हम मोबाइल पे कर रहे हैं वो उतना इफेक्टिव, और उसको इफेक्टिव करने के लिए बहुत जरूरी कि हम डेस्कटॉप से करें, और ज़रूरी है कि हम स्क्रीन शेयर करें, उसका वाइट बोर्ड यूज़ करें, पावर पॉइंट बनाएं उसको। थोड़ा पावर पॉइंट बनाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब जब यूज़ करना शुरू करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, और बच्चों को समझ में भी बहुत आसानी से आ रही है चीज़ें, इसलिए उसका यूज कीजिए, वो काफ़ी बढ़िया है। ह्यूमर का मुझे सडनली आपने पूछा, ह्यूमर तो इतनी ऐसी चीज़ रही हैं स्कूल लाइफ में तो अलग ही होता है। एक मुझे याद आ रहा है ह्यूमर, हमारे एनसीसी के टीचर होते थे, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे। हमारे टाइम में क्या होता था कि इकोनॉमिक्स भी 2 पेपर होते थे, आपका जो सबसे कम मार्क्स आएगा वो 5th पेपर बन जाएगा आपका। तो हम लोग मन में ही लेके चले थे कि चलो इकोनॉमिक्स कैसे करना है, ऐसे ही ले लिए हैं, 5th पेपर बन जाएगा, वो मेरा बन भी गया। उस समय उन्होंने बोला था कि जब तुम बड़े हो जाओगे और कहीं बाहर जाओगे, बिहार से बाहर जाओगे, और तब देखो, तब तुमको इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। और हम लोग हंसते रहते थे, तो वो एक अलग था। लेकिन मुझे पता चला, एक और घटना याद आ रही है, हमारे संस्कृत में होते थे एक छोटका पंडित जी, एक बड़का पंडित जी। छोटका पंडित जी सच में छोटे थे और बड़े पंडित जी थे, और दोनों में पढ़ाने में जो है तरीके में, बड़े पंडित जी आते थे बड़े ही अदब से, उसके साथ हम करते थे। छोटका पंडित जी आते हम लोग हो हंसने लगते थे। और इसी में क्या हुआ, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो यहाँ भी सर्वेश था, वो कुछ ने कुछ बोल दिया, और उसके बगल में मैं बैठा हुआ था, तो दौड़ते हुए गए सर, तो वो उसको लग गया कि मैं पिटने वाला हूँ तो वो पहले से तैयार हो गया, सामने एक पटान, तो उसको जो है ना मारे जोर से हाथ कस के, तो वो छिप गया। उस वक्त मैं था तो मुझे लगा फिर दोबारा पग मारे, तो फिर वो छिपा, मैं भी छिपा, और उसका हाथ जो है ना इसके ऊपर लगा, टेबल के ऊपर, तो बहुत तेज चोट लग गई। चोट लगने के बाद उनका गुस्सा जैसे तो और भी साधने पा रहा है। और पहले तो मारने पीटने की बच्चे को आज़ादी थी, बिना मैंने कुटाई के तो होता नहीं था। अभी तो क्या होता है कि टीचर हाथ उठाते हैं, मारते हैं। उस समय न कुटाई होती थी, पिटाई नहीं होती थी, कुटाई होती थी पकड़ के। तो वो घटना मुझे याद आ रही है। और वो सर्वेश पीट रहा था, उसको जमीन पटक के पीट रहे थे, और उसकी पिटाई में हम लोग को डर नहीं लग रहा था, हम लोग हंसी आ रही थी। अब जो हंस रहा था वो भी पिटता, तो उसको मुंह को दबा करके अगर क्लास में एक आपका सहपाठी पिट रहा हो, उस समय जो आनंद आता है कि वो मेरा दोस्त पिट रहा है, उस आनंद की बात ही कुछ और होती है। और मैं बिल्कुल मुंह दबा करके, और आपको उस आनंद को दबाए रखना है, वो तो बहुत अभी भी आता है इस तरह की चीज़ें। तो कभी कभी अंदर से ना एक दिल से मुस्कान निकल के आती है। सो आप लोग आए यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। और इस संस्थान से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे,
और इस तरह का आयोजन, चाहे ये कोविड-19 हो या कुछ भी हो, इसमें ऐसा नहीं कोविड-19 से, क्योंकि एक मैं और भी बोला था, अब दिस इज़ कॉल्ड द न्यू नॉर्मल। अब ये न्यू नॉर्मल, हाँ हाँ हाँ, उसी सर्विस की बात कर, नहीं बहुत को लोग जानते हैं सर्विस किया है। सबसे बड़ा प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा, मैं सर्विस के बारे में ये बताना चाहूँगा। सर्विस अपना आईएएस वगैरह कोचिंग चलाते हैं। पिछले 5 साल से बीपीएससी का टॉपर उनका स्टूडेंट रहता है, जो पिटारा था वो बीपीएससी के टॉपर, उनका पढ़ाया हुआ बहुत ही सक्सेस रेट है। और बीपीएससी का टॉपर टॉप 3 उन्हीं का होता है जनरली यहाँ पे। तो वो जनरली अभी 3-4 दिन दिल्ली में होते हैं, 3 दिन वो वीक में यहाँ होते हैं, पटना में, दोनों जगह पर आते हैं क्लोज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you, sir. Now we are running out of time. तो कोई अगर आप लोगों में से, if anybody wants to say something, or perhaps do something, perhaps sing a song or whatever. Mukhi sir, okay. Yes. Okay. इधर. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी लोग एक शिक्षक हैं। शिक्षक का कार्य जो है इस दुनिया में इतना सर्वोपरि है कि एक शिक्षक इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस, डीएसपी, इन सारे चीज़ को पढ़ा करके और आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसलिए शिक्षक का हमारे समाज में इतना बड़ा योगदान है कि हम बयां नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर 1888 को हमारे भारत के सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। वे जब स्कूल में पढ़ते थे वो कोई रीच फैमिली से बिलोंग करने वाले नहीं थे, वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले थे। वो गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे। वो 1903 में यानी 15 से 16 साल की जब उनकी उम्र हुई, उनकी शादी हो गई 10 वर्ष की लड़की से। मैं अभी की बात को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उस समय ऐसा होता था। उसके बाद में भी, शादी होने के बाद में भी, शादी डज नॉट मैटर, शादी होने के बाद में भी उन्होंने अपनी शिक्षा को इतना आसानी से आगे बढ़ाया, बहुत कठिनाई से उन्होंने आगे बढ़ाया। और उन्होंने ये दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे प्राध्यापक के रूप में चुनाए। उसके बाद में वे अपने शिक्षा को आगे बढ़ाते गए। हमारे वही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। जब हमारा स्वतंत्र भारत जब हुआ था उसके बाद में उपराष्ट्रपति की कोई सीट नहीं थी, लेकिन सृजित करके और सीट को जो है बनाया गया था। तो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय उपराष्ट्रपति भारत के सर्वपल्ली डॉक्टर श्री राधाकृष्णन बने थे। मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। Dhanyavad Mukhi sir. Now I think we have arrived at the end of this small, very brief but very interesting function. I thank Chairman sir, Advisor sir, Director sir, and all of you from the very bottom of my heart. And I bless all the students. I thank all the other staff members who were here to encourage us on this particular day. So thank you very much. And we have a very brief, a small refreshment for you, something very light. So please take that. And thank you once again. Thank you very much.